أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کن بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. بہرحال پتم اخ درس وات اس سورہ آل عمران آخری رکوع یتھن سمجھنچ کوشش کران. تمچ گۄڈنِچ آیت یس زن تتھ مز پوٚر اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماوان کہ بے شک زمین و آسمان ہندس تخلیقس مز اور رات اور دن کے آنے میں ان میں اول الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. بہرحال میں کرو رات عرض کہ اول الالباب یم زن اول الالباب کم گئی. اول الالباب یس زن یہ لفظ اصلی لب معنی عقل اور بالخصوص جو اصل میں دماغ کا جو مغز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لب. اسی کی جمع ہے الباب یعنی دماغ والے یا عقل رکھنے والے. اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ کیسا کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ بنٲمٕژ یم غور و فکر کرن ول یم عقل ول. بہرحال جب وہ اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو وہ بہرحال اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا ضرور اقرار کرتے ہیں. یعنی یہ ساتھ انسان غور کرن سورج پر چاند پر ان دریاؤں پر ان پہاڑوں پر ان مرغزاروں پر. بہرحال جب وہ غور کرتا ہے تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی عقل والے خاطر کیا نشانی ہے یعنی جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. بالکل تتھے پاٹھن یت پاٹھن اک انسان کنس دوست سن نشانی وچھ دوست یاد پیون اسی طرح جو عقل والے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو بلا ساختہ انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. مگر یاد گژھِ تھاوُن ییٚمہِ آیتہِ تل چھِ فکرِ تران کہ یمو نشانیو نش اور یم آیات یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ یت کائناتس من چھکرٲیِتھ تھٲومٕتۍ چھِ یِمو سۭتۍ چھِ خۄداے صرف تمن یاد پیوان یم زن اُلِل الباب آسان یعنی یم زن عقلِ وٲلۍ آسان چھِ. اچھا عقلِ وٲلۍ کم گئی. اب آج ہمیں اس کی تفسیر پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا. عقل والے وہ لوگ ہیں, اُلِل الباب وہ لوگ ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما کھڑے, و قعودا یا اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں, وعلی جنوبہم یا چاہے وہ لیٹے ہوئے. انسانس یمے ترے حالت آسان, یا تو وہ کھڑا ہوگا, یا تو وہ بیٹھا ہوگا, یا تو وہ لیٹا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ فرمان یم زن اُلِل الباب یم زن واقعی عقلی وٲلۍ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, چاہے کھڑے ہوں, چاہے بیٹھے ہوں, چاہے لیٹے ہوں. یعنی ہر حال میں وہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کان خبر کوتا تہ پنس پانس عقل مند ونان آس, اگر کان خبر کوتا پنس پانس سائنٹسٹ ونان آس, ڈاکٹر ونان آس, یا بوڑ ڈگری وول ونان آس, لیکن اگر اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر, اگر اسے اللہ کی کائنات کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے تو قرآن کی روح سے وہ عقل والا نہیں ہے, بلکہ وہ بالکل چوپائیوں کی طرح ہے, وہ ڈنگروں کی طرح ہے. بلکہ یتنی لکن متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. لہم اذان لا یسمعون بہا, اللہ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں. ہاں بظاہر وہ دیکھتے بھی ہیں, بظاہر وہ سنتے بھی ہیں, لیکن یس اصلی حقیقت یمن وشی اس, یس اصلی حقیقت یمن بوزی اس, سو چھنہٕ یمن فکر تران کینٛہہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل,
ये असल में चौपाए हैं, बल्कि चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं। वो आज की दुनिया में जो हम बड़े बड़े मुफक्किरों को देखते हैं, बड़े बड़े स्कॉलरों को देखते हैं, बड़े बड़े साइंसदानों को देखते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमने इस कायनात की हकीकतों को पा लिया है, समंदर की तहों को चीर लिया, आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच गए, मार्स तक हम पहुंच गए, या हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन अगर उन्हें अल्लाह इन चीज़ों से याद नहीं आता है, या अगर वह अल्लाह की हकीकत को इन चीज़ों से नहीं देखते हैं, तो कुरान की रूह से वो उलिल अलबाब नहीं हैं, बल्कि वो चौपाए हैं, चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं। तब अल्लाह ताला फरमान, ये उलिल अलबाब कौन होते हैं? उलिल अलबाब को तुम लोग, यानी उलिल अलबाब यमन जर कायनात वुशित, कायनात बनावन वोल याद पेवन छ, तो वो कौन होते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को खड़े बैठे लेटे हर हाल में याद करते हैं। तवै छ फुक़हा मसला अख लिखमत कि अगर अख शख्स इंतकाल करे और इंतकाल के वक्त अगर वो वसीयत करेगा कि मैं यह जन प्रॉपर्टी छ यह गई मुंतकिल करने, यह गई बगरा यी कमन अकल वालन मज, यानी वसीयत तो 1/3 में होती है। बहरहाल अगर कहीं इंसान मरन वसीयत कर कि मैं प्रॉपर्टी हसा गई तकसीम कमन मजी करने अकल वालन मज, तो फुक़हा ने लिखा है ये प्रॉपर्टी किन में तकसीम होगी? तो ये प्रॉपर्टी ये जाकिरीन और जो जाहिदीन होते हैं उनमें तकसीम होगी, क्योंकि कुरान ने कहा है कि जाकिरीन और जाहिदीन ही असल में उलिल अलबाब है, वही असल में अकल वाले हैं। बहरहाल अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये उलिल अलबाब इनकी पहली सिफत ये है कि ये खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, यम छ खुदा सुन जिक्र कर। बहरहाल ये जो अल्लाह का जिक्र है इसके बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा है। अलबत्ता कुरान पाक कुरान पाक आमुत जिंदगी बदलाने खतर, कुरान पाक आमुत जिंदगियन रज वक्त दिन खतर। अगर हम कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि यमन मुतलिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमो यहूदन मुतलिक कि यहूद भी तो अहली किताब थे, वो भी तो किताब पढ़ते थे, इंजील पढ़ते थे और तौरात पढ़ते थे, लेकिन इंजील और तौरात को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लाया था। तुमन मुतलिक फरमो कुरान पाकन कि इनकी मिसाल गद्दू की सी तरह है, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, ये गद्दू जैसे हैं जिन्होंने किताबों का बोझ अपने पीठों पर या अपनी कमरों पर लाद दिया है, मगर बहरहाल दिमागस में छुकनी वसन क्या। इसलिए कुरान हमसे मुतालबा करता है कि यस आयत युस चीज़ इस पढ़ो इस पर बहरहाल क्या करें, अमल करें और हमारी ज़िंदगियां उससे बदलनी चाहिए। कुरान ने आज हमें बताया कि अक्ल वाले कौन हैं। अब हमारा फैसला है कि हम अक्ल वालों के साथ अपना शुमार करवाएंगे या हम अनआम यानी चौपाइयों के साथ अपना शुमार करवाएंगे। बहरहाल अक्ल वाले अगर हम बनना चाहते हैं उसकी सूरत यह है कि हम खड़े बैठे लेटते हुए हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला सुन जिक्र ये क्या नियामत है और ये क्या इसकी क्या अहमियत है। बहरहाल बोन भी अक्सातनस खुसूसन सानिस महलस में बोड़ रुझान यह कि जिक्र नसा बोड़ चीज़ा क्या, बल्कि ज्यादा पहमत गैस आसन क्या कुरान पाकस पे गैस आसन नजर, तकरीर गैस तगुन करुन और ये जर अत क्या वन बाकी गैस अत क्या वन बाकी काम करने चाहिए। हाँ ये भी सही है कि जिक्र योतन सोरे दीन क्या, अलबत्ता जिक्र कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए पे जिंदगी में एहतमाम करें, जिक्र का एहतमाम करना चाहिए। बहरहाल जिक्रस क्या फजीलत है, पहले हम कुरान से समझेंगे इसकी जिक्रस क्या फजीलत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु ला यअलमून, कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अगर तुम कुरान पाक मुताला करियो, कुरान पाकस में कुनी चीज़ खतर आमुत अकबर लफ्ज़ इस्तेमाल करने के सिर्फ 2-3 चीज़न खतर। एक अल्लाह के लिए आया है अकबर, अल्लाहु अकबर, ये तो हम पढ़ते हैं। दोयम चीज़ आमुत हज्जुल अकबर तक जाए कुरान पाकस में आमुत, मगर इसके अलावा कहीं पर किसी चीज़ के साथ अकबर नहीं आया है। इससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह के जिक्र की क्या फजीलत है कि कुरान पाक में बताया गया है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का जिक्र जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। बीच जैसे अल्लाह तबारक व तआला जिक्र मुतल्लिक़ फरमावन कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, आप मुझे याद करो मैं आपको याद करूँगा।
ये इतनी बड़ी फजीलत है कि जब हम अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह हमें याद करेगा। हमारी कोई हैसियत है अल्लाह के नज़दीक, मगर जिक्र यीज बड़ न्यामत कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाकस मं वनान कि मैं करियो याद मैं आपको याद करूँगा। बल्कि हदीसस मं आमुद हदीस कुदसी फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब बंदा मुझे याद करता है, ये बंद मैं याद करन तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। यानी जब बंदा मुझे दिल में याद करता हूँ तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब बंदा मेरा जिक्र किसी मजलिस में करता है तो मैं भी उसका जिक्र इससे बेहतर मजलिस में करता हूँ, यानी फरिश्तों की मजलिस में करता हूँ। और फरमो अल्लाह तबारक व तआला कि जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त दौड़ कर आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। बहरहाल अत हदीसस मज कमी फजीलत आमद बयान कर, जिक्र फजीलत आमद बयान कर। इसी तरह कुरान पाक में दूसरी जगह है कि कुरान पाकस में आमद वन यहाँ पर कहा गया कि अल्लाह के जो यम जन खुदाई सिंध वाकई यम जन अल्लाह ताला ने अक्ल दिसमज आसन वो खड़े बैठे लेटे हुए हर हाल में क्या करते हैं अल्लाह को जिक्र करते हैं। 20 जज कुरान पाकस में आमद कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला हमें हुक्म करता है कि वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आप अल्लाह का खूब कसरत के साथ क्या करो जिक्र। यहाँ कहा गया कि खड़े बैठे लेटे हुए वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और सूरह आरा ये अहज़ाब में शायद गालिबन ये आयत है कि वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आप अल्लाह का खूब कसरत के साथ क्या करो जिक्र करो। बहरहाल ये क्या है वन कहीं पर नमाज के बारे में ये नहीं कहा गया कि खूब नमाजें पढ़ो, रोज़ों के मुतलिक ये नहीं कहा गया कि खूब रोजे रखो, हजस मुतलिक आनो वन कि खूब हज करियो, या इन्फाकस मुतलिक खुदा सिंह वत मज खर्च करने मुतलिक आनो वन कि खूब खर्च करियो, मगर जिक्र से योतन मुतलिक आ वन क्या खूब करियो जिक्र। इसकी उलमा ने वजह बयान की है। वजह क्या है? वजह यह है कि जिक्र में कोई खास मेहनत नहीं लगती है, जिक्र में खास मेहनत। अब अगर आप देखेंगे रोज़ू में मेहनत है, सुबह से शाम तक भूखा रहना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसमें भी तबीयत पर यह शाख गुजरता है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। नमाज में भी मशक्क़त है, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुज़ू करना या नींद से बेदार हो जाना फिर मस्जिद की तरफ आ जाना, इसमें मशक्क़त है। मगर जिक्र में कोई ख़ास मशक्क़त, इंसान चलते फिरते सोते हुए बिस्तर पर लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र कर सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र के बारे में कहा है वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि आप कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि इसमें कोई खास मशक्क़त या इसमें कोई खास आत्मशर का खास एहतमाम की ज़रूरत न तो वुज़ू की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई वुज़ू करे वो तो ज़्यादा बेहतर है, मगर वुज़ू के बगैर भी इंसान क्या कर सकता है? जिक्र कर सकता है। हत्ता कि जनाबत की हालत में भी इंसान जिक्र कर सकता है। हाँ, तिलावत नहीं कर सकता है मगर जिक्र है कि सुकरियत, यानी अगर उस पर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल वाजिब होने की हालत में भी अल्लाह का वो जिक्र कर सकता है, चाहे सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मगर तिलावत है कि जनाबत किस हालत में करियत क्या। इसी तरह बाकी इबादत के लिए, नमाज के लिए क़िबला रू होना, मस्जिद या पाक होना ये ज़रूरी है, मगर जिक्र के लिए इन शराइत का होना ज़रूरी। हाँ, अगर इन शराइत का पास लिहाज रखा जाए उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, मगर इन शराइत का होना जिक्र के लिए ज़रूरी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र के बारे में कहा कि वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आप अल्लाह का खूब कसरत के साथ जिक्र करो। बल्कि अजीब इत्तेफाक मैदानी जहाद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिक्र करने की जो क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमान वाइज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब आपका सामना किसी ग्रोह के साथ हो जाए, यानी जब आपका सामना कुफार के साथ हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का खूब जिक्र करो, यानी तम सातन तक कर जाओ खुदाई सुन खूब जिक्र। तो ये जिक्र की अहमियत है। अब बताइए अल्लाह ने हमें कितनी वसअत दी है कि हम बैठे हुए हैं आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें, लेकिन कितनी महरूमी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस जिक्र को जगह नहीं देते हैं। बल्कि रवायत मुझ आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ते तालीम कर्मुस जिक्र कि सुबह के वक्त आप क्या अज़कार करेंगे, शाम के वक्त आप क्या अज़कार करेंगे, बल्कि लम्हस लम्हस खतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थमित अज़कार हेचन।
आप घर से निकलेंगे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, घर में दाखिल होंगे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, खाना शुरू करेंगे तो क्या दुआ पढ़ेंगे, खाना खत्म करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसी तरह मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे तो क्या जिक्र करेंगे, मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो क्या जिक्र करेंगे, इसी तरह आईना देखेंगे तो क्या जिक्र करेंगे, सवारी पर सवार हो जाएंगे तो क्या जिक्र करेंगे, इसी तरह अपने अपने ज़ौज के साथ या अपनी हमजोड़ा के साथ आएंगे तो उस वक्त क्या दुआ करेंगे। बल्कि गर्ज अगर तक वो जिंदगी हंदिस अकिस अकिस कदमस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अज़कार तो मुख्तलिफ दुआ हेचन। ये इस वजह से है कि अकिस इंसान सुन ध्यान गैस आसुन हर वक्त कौन अल्लाह की तरफ। अच्छा, जिक्र किसको कहते हैं? जिक्र लफ्जी माना को याद करना। जिक्र के लफ्जी माने क्या है? याद करना। अब याद इंसान जुबान से भी कर सकता है और दिल में भी कर सकता है, इसीलिए जिक्र की दो किस्में हैं। एक को कहते हैं जिक्र कल्बी यानी अल्लाह को दिल में याद करना, दूसरा होगा जिक्र लिसानी यानी जुबान से याद करना। असली हकीकत जिक्र की है जिक्र कल्बी, यानी असली जिक्र हकीकत कम से हासिल कर, यानी हर वक्त अल्लाह को याद रखना। क्या मतलब? हम कोई काम करने जा रहे हैं तो इसमें भी अल्लाह को याद करना कि ये काम जायज़ है या नाजायज़ है। अगर आपने जायज़ काम को किया यही हो गया अल्लाह को याद करना। नाजायज़ काम से आप रुक गए ये वो जिक्र कल्बी यानी आपने दिल में अल्लाह को क्या याद रखा। कोई इंसान सुच वनस कुर्सी पे बिहत, अब कोई इंसान इसको रिश्वत का पैसा ये इसको रिश्वत पोस पिलनावन। अब अगर ये इस रिश्वत के पैसे को वसूल करता है, पकड़ता है, अगर ये जुबान से सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है मगर इसको हम जिक्र नहीं कहेंगे क्योंकि इसने अल्लाह को याद नहीं रखा, अल्लाह के हुक्म को याद। वो असली हकीकत कुछ कि हर हाल में अल्लाह को याद करना, अलबत्ता जुबान से जिक्र करना ये असल में अल्लाह की याद की मशक है। ये असली मशक करना कम खतर कि चे हर हालस मज खुदा याद रोज। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम कर्म कि यम सात तुम बत म्योंड तुलियो या यम सात तुम खाना शुरू करो तो बताओ खाने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह। ना पढ़ो बिस्मिल्लाह, और कुछ रिवायत में आता है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, मगर असली दुआ है बिस्मिल्लाह। अब बताइए जब एक बंदा बिस्मिल्लाह कहता है इसका मतलब क्या है? ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये खाली ये रस्मी पढ़ने योतन के, बल्कि असल में इस बात का इस्तेहजार होना चाहिए। अम कथ ध्यान आसुन कि जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ अल्लाह मुझे हुक्म करता है कि ये रिज़्क हलाल होना चाहिए। वो गोकुन गसन जहन कि ये हलाल रिज़्क क्या। दूसरा, आपके दिल में आजिज़ी पैदा होनी चाहिए, अरे बारिला खुदाया ये रिज़्क इससे मैं दुत। अब बताइए ये मेरे बस में नहीं था कि मैं ये रिज़्क खुद हासिल करता, ये आपकी रज़ाकी का सदका है कि आपने मुझे क्या ये रिज़्क अता किया। गज़ब। तेयुम, जब ये रिज़्क आपके सामने, ये रोटी का निवाला आपके सामने आएगा, अब आप में ये आजिज़ी पैदा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह से आपका जहन इसकी तरफ आना चाहिए कि अल्लाह ही रिज़्क दिन वाल, बारिश को भेजने वाला अल्लाह। अगर वो बारिश नहीं भेजता तो ये रिज़्क कहाँ से आता? ये चोट बने, ये मकई बने या ये दाई बने। अब आसमान से सूरज की रोशनी को फराहम करने वाला इसके लिए वो कौन है? अल्लाह। इस बीज को हमने कहाँ पर डाल दिया? जमीन में। इस बीज को फाड़ने वाला, फिर जमीन से उगाने वाला, इसको मरहलावार इसकी तरबियत करने वाला वो कौन है? अगर ये कैफियत असमज तारी गसन बिस्मिल्लाह पढ़न पढ़न तब जाकर हमें असल में जिक्र की हकीकत समझ आ गई, वरना हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह लेकिन हराम का लुकमा है। बताओ क्या इसमें बरकत हो जाएगी और क्या जिक्र का हकीकी माना अदा हो जाएगा? नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमान यम उलिल अलबाब आसन, यम वाकई अक्ल वाले आसन, यम ये कायनातस में खुदाई सिंह निशानी वुचन तो ये खूब समझ लेते हैं कि इनको पैदा करने वाला कोई आला और अरफा ज़ात है। वो यम निशानी पता दिवन कम सुन खुदा। वरना अगर कोई बड़े से बड़े फिलासफर, बड़े से बड़ा साइंसदान इन हकीकतों को, इन निशानियों को देखता है मगर अल्लाह की तरफ नहीं आता तो वो कुरान की रूह से उलिल अलबाब अक्ल वाला नहीं। अब इन अक्ल वालों की क्या कैफियत है, उनकी क्या सिफत है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये खड़े बैठे लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। बहरहाल
ذکر متعلق کت کر حدیث مجھ آمد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مثل الذین یذکرون اللہ یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد کرتے ہیں و مثل الذین لا یذکرون اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں کمثل الحی والمیت ان کی مثال مردہ اور زندہ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے مرنے یہ جو ذکر کے بغیر زندگی بسر کرنے والا وہ کیا ہے وہ یعنی اللہ کو یاد نہ کرنے والا وہ مردہ ہے یعنی یس نمازی پڑھن یس تلاوتی کرن یس خدا سند حکمن ہند احکامن ہند پاس و لحاظ تھاون اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے مردہ ہے بلکہ ات حدیث سے زیادہ تشریح گژھان بی اکہ حدیث سے فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقوم الساعہ تو تائیں گژھِ نہٕ قیامت برپا کینٛہہ کوتامت جب تک کہ کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود نہیں رہے گا یعنی جب یہ اللہ اللہ کرنے والا انسان سبھی ختم ہو جائیں گے تب اللہ کہے گا کہ اب تو یہ ساری کائنات مردہ ہو گئی ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب جا کر قیامت برپا ہوگی گو یوتائیں اللہ اللہ کرن وول روزن زندہ دنیا میں تو تائیں قیامت یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اللہ کے ذکر کی برکت ہے آخری حدیث لیکن یہ حدیث اور یہ آیتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سائیں زندگی میں گھس امی ذکر چیزن اس کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک سات مجلس میں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام عملوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے کیا بونو نا تہ سا عمل یس خدایس نزدیک سارے کھت بہترین عمل تہذو عملوں مز اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کیا میں وہ عمل آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے کیا بونو نا تہ سا عمل یس زن خدای سند وتہ مز مال خرچ کرنے کھت تہ زیادہ افضل اور کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں آپ ان کی گردنوں کو ماریں وہ آپ کی گردنوں کو ماریں یعنی اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابہ زبان تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں رسول اللہ صحابہ کیا بنے وہ تو اشتیاق میں تھے کہ کوئی عمل ہمیں ایسا مل جائے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے یعنی یہ ساریو عملوں کو بہتر چکوس اللہ کا ذکر لیکن اس حدیث سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ خالی زبانی ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کا حقیقی مفہوم یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا یعنی معاملات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا پرائیویٹ لائف مز تہ خدا یاد تھاؤن سوشل لائف مز تہ اللہ تعالیٰ یاد تھاؤن پنہ خانداری ست معاملہ کرنے وز تہ اللہ تعالیٰ یاد تھاؤن پنن بچن ست معاملہ کرنے وز تہ خدا یاد تھاؤن مشید مز تہ خدا یاد تھاؤن مشید نیبر تہ خدا یاد تھاؤن ڈیوٹی مز تہ خدا یاد تھاؤن اتھے پٹھنس سودا کرنے وز تہ خدا یاد تھاؤن باغس مز گژھنے وز تہ خدا یاد تھاؤن ہمسائے کے ساتھ سلوک کرتے وقت اس وقت بھی اللہ کو یاد یہی اصل میں اللہ کا ذکر ہے بہرحال اوے ون کہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ یہی سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ جب ہر معاملے میں ہر حال میں انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو یہی تو سب سے بڑی عبادت اور یہی تو مقصد ہے تمام عبادات کا سارنی عباداتن ہند مغز کیا کہ پریت حالس مز گژھِ مےٚ یاد آسُن کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم تو یہ اولی الالباب اصلی عقل والے کون ہیں جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں چاہے وہ کھڑا ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں اچھا اس میں علماء تفسیر مفسروں شاید عجیب نقطہ کھولمت آپ مجھے بتائیے کون سی عبادت ایسی ہے جس میں انسان کھڑا ہو کر بھی بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی عبادت کرتا ہے صرف نماز اسی لیے سب سے اعلیٰ عبادت کون ہے یہ قیامت میں آسن اس وقت ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات میں بہن تو بیٹھے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم لیٹ کر کس کی عبادت کرتے ہیں کس کا ذکر کرتے ہیں اسی لیے قرآن میں نماز کے بارے میں آیا ہے اقیم الصلاۃ للذکری آپ نماز قائم کرو کس کے لیے میری یاد کے لیے اچھی طرح فکر کی نماز ہز کیا اہمیت قرآن پاکس میں اور اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت گو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پرلے درجے کا احمق ہے وہ انسان جو نماز چھوڑتا ہے تکیاز اولی الالباب چھن تیل سو کیا تو دوسری صفت ان کی کیا ہے میں مکمل کروں گا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہاں اور یہ اولی الالباب کون ایک تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے دوسرا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کس میں
फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमानों की बनावट में, ज़मीन और आसमानों की मुख्तलिफ चीज़ों में वो गौर करते हैं। यानी जो चीज़ से उलिल अलबाब में, एक तो वो जिक्र है और दूसरा फिक्र, यानी जिक्र तो फिक्र, यानी जिक्र अल्लाह की याद भी करते हैं और गौर व फिक्र भी करते हैं। अलबत्ता याद रखिए, मुफस्सिरीन ने लिखा है गौर व फिक्र का सिर्फ कर मखलूकस में, गौर व फिक्र खालिक में नहीं होगा। अगर कहाँ खालिकस मज लाए गौर व फिक्र कर कि खालिक कत आव, खालिक किस पर बनो, अगर तुम कायनात बनो किस पर बने पान, तब तो इंसान मुल्हिद हो जाएगा, तब तो इंसान बेदीन हो जाएगा। इसीलिए हदीस में आता है कि गौर होना चाहिए किस में, मखलूक में, खालिक की जात में गौर व फिक्र, क्योंकि वो हमारी अक्ल ही नहीं है कि हम खालिक के बारे में गौर व फिक्र कर सके। इसलिए अल्लाह ताला फरमान व यतफक्करुना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, वो गौर व फिक्र करते हैं लेकिन किस में, अल्लाह की पैदा करदा चीजों में, अल्लाह के बारे में वो गौर व फिक्र नहीं करते हैं। ये उसूल कि गौर व फिक्र का सिर्फ मखलूकस में खालिक की जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं। बहरहाल B1 बरात का हजरत हसन बसरी का वो कौल जो उन्होंने फरमाया है कि एक साथ या एक लम्हे का गौर व फिक्र ये रात भर इबादत से भी बेहतर है। रात भर इबादत बहुत, बल्कि असी जोड़ आखिरी का आज के दर से हदीस, ये आयत मुकम्मल नहीं होगी, कल हम करेंगे इसको मुकम्मल। हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि एक शख्स अगर एक आयत कुरान की उस पर गौर करेगा, यानी अगर का शख्स, अगर का इंसान कुरान किस अकिस आयतस पे करे गौर, ये कुरान के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कुरान की एक आयत पर गौर व फिक्र करेगा, तदब्बुर करेगा, उसको सीखेगा, तो ये रात भर 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है। यानी रात 1000 रकात पढ़ने को क्या है। अब खुद अंदाजा लगाइए ये कुरान कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन बदकिस्मती से हमने इस कुरान को सिर्फ ज़बानी तोते की तरह रटने के लिए रखा। हाँ, उसमें भी फायदा है, लेकिन असली फायदा कब है, जब हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे, जब हम इस पर तदब्बुर और तफक्कुर करेंगे। रब्बुल आलमीन से मगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दीने ज़्यादा को ज़्यादा जिक्र करने की तौफीक दे, ज़्यादा को ज़्यादा मखलूक पर गौर व फिक्र करने की तौफीक, तब जाकर हम उलिल अलबाब में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से भी आज ब्याक टुकड़ जिंदगानी इंशाअल्लाह रहमान कल उसकी वजाहत होगी। अल्लाह ताला से मगो दुआ कि इस कुरान पाक समझने की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्द।